one's own religious principle. Api, Be also. also Cha, cha indeed. indeed Aviksha, Aviksha considering. considering Na, never. na never Vikampitum, become to hesitate. to hesitate. Arhasi, Arhasi, you deserve. you deserve. Dharmyat, Dharmyat for religious principles. for religious principles. He, indeed. He indeed Yuddhat, Vidyat then fighting. and fighting. Shreyaha, Shreya, better engagement. better engagement. Anyat, Anyat, any other. any other Kshatriyasya, of Kshatriyasya the Kshatriya. of the Kshatriya. Na, Na does not. does not Vidyate, vidyate exist. exist. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Jai. Considering your specific duty Considering your specific duty as a Kshatriya, as a Kshatriya, you should know you should know that there is that there is no better engagement no better engagement for you for you than fighting than fighting on religious principles. on religious principles. And so, And so, there is no need there is no need for hesitation. for hesitation. Prabhupada by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. प्रभुपाद की जय प्रभुपाद की जय चलो पढ़ो. कौन पढ़ेगा? माताजी कैन आई रीड हाँ. out of the four orders of social administration, the second order for the matter of good administration is called Kshatriya. Kshat means hurt. One who gives protection from harm is called Kshatriya. Trayate, to give protection. The Kshatriyas are trained for killing in the forest. A Kshatriya would go into the forest and challenge a tiger face to face and fight with the tiger with his sword. When the tiger was killed, it would be offered the royal order of crimination. This system has been followed even up to the present day by the Kshatriya kings of Jaipur state. The Kshatriyas are specially trained for the challenging and killing because religious violence is sometimes a necessary factor. Therefore, Kshatriyas are never meant for accepting directly the orders of sannyasa or renunciation. Non-violence in politics may be a diplomacy, but it is never a factor or principle in the religious law book. It is stated in the battlefield, a king or Kshatriya, while fighting another king envious of him, is eligible for achieving the heavenly planets after death, as the Brahmanas also attain the heavenly planets by sacrificing animals in the sacrificial fire. Therefore, killing on the battlefield on religious principles and killing animals in the sacrificial fire are not at all considered to be the acts of violence because everyone is benefited by the religious principles involved. The animal sacrificed gets a human life immediately without undergoing the gradual evolutionary process from one form to another. And the Kshatriya killed on the battlefield also attend the heavenly planets as do the Brahmanas who attend them by offering sacrifice. There are two kinds of swadharmas, specific duties. As long as one is not liberated, one has to perform the duties of his particular body in accordance with
religious principles in order to achieve liberation. When one is liberated, one's swadharma specific duty becomes spiritual and is not in the material bodily concept. In the bodily conception of life, there are specific duties for the Brahmanas and Kshatriyas respectively, and such duties are unavoidable. Swadharma is ordained by the Lord, and this will be clarified in the fourth chapter on the bodily plane. Swadharma is called Varnashram Dharma or man's stepping stone or spiritual understanding. Human civilization being from the stage of Varnashram Dharma or specific duties in term of the specific modes of nature of the body obtained, discharging one specific duty in any field of action in accordance with the orders of higher authorities serves to elevate one to a higher status of life. जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. सो इस श्लोक में ट्रांसलेशन में कृष्णा कहते हैं कि कंसिडरिंग योर स्पेसिफिक ड्यूटी एज अ क्षत्रिय, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles. कृष्णा क्या कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारे लिए ऐसा कोई इससे अच्छा काम है नहीं. तुम धर्म का पालन करते करते अगर फाइट करोगे तो इससे परे तुम्हारे लिए और कुछ अच्छा काम बना नहीं है, कहते कृष्णा. इसलिए तुम्हें हेजिटेट होने की जरूरत नहीं. तुम अपनी ही ड्यूटी कर रहे हो, अपनी ही ड्यूटी करने में हेजिटेट करने की जरूरत नहीं. अच्छा, मान लो अगर अर्जुन किसी का नुकसान करने के लिए फाइटिंग कर रहा होता तो इस सेंटेंस के ऑपोजिट हो जाता. फाइटिंग ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स, इसका ऑपोजिट करता वो, है ना. किसी का बुरा करने के लिए करता या शोषण करता समाज का. तो फाइटिंग ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स मतलब धर्म के हिसाब से लड़ाई करना, इसके अगेंस्ट हो जाता, फिर वो गलत होता. फिर वो अपनी क्षत्रियता गलत तरीके से मिसयूज कर लेता. जैसे देखो, अभी ये क्षत्रिय के लिए नहीं है. अगर हम ब्राह्मण को बोले तो कंसिडरिंग ड्यूटी ऑफ ब्राह्मणा, अगर ब्राह्मण धर्म के हिसाब से अपना ड्यूटी करेगा तो उसको इससे बेटर काम और कुछ है नहीं. लेकिन अगर ब्राह्मण ऐसे चांडाल जैसे काम करेगा, पाखंडी जैसे काम करेगा, ब्लैक मैजिक करेगा, किसी को मारने का षड्यंत्र करेगा, मंत्रों के उच्चारण से अच्छे लोगों को तकलीफ देने की कोशिश करेगा, अपना बदला निकालने की कोशिश करेगा, तो वो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध जाकर अपना ब्राह्मण का धर्म निभा रहा है. तो इसलिए वो क्या होगा, वो पाप होगा, वो सही नहीं होगा. लेकिन उसमें हेजिटेट करना है. लेकिन अगर ब्राह्मण सही काम कर रहा है, धर्म का पालन करते करते अपना ब्राह्मण का काम कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है और शास्त्र सिखा रहा है लोगों को, तो वो धर्म का पालन कर रहा है. फिर अगर आप वैश्य ले लो, अगर वैश्य भी धर्म का पालन करते करते अपना व्यवसाय करता है तो वो सही कर रहा है. लेकिन अगर वो धर्म का पालन ना करते हुए कोई ऐसे व्यवसाय कर लेता है जो नहीं करने चाहिए, गलत गलत व्यवसाय कर लेता है, इंटॉक्सिकेशन रिलेटेड व्यवसाय कर लेगा, या फिर बच्चों को किडनैपिंग करना, औरतों को किडनैपिंग करना, इधर का उधर बेच देना, गलत चीजें बेचना, तो ऐसे वैश्य काम करेगा तो वो अधर्म हो जाएगा उसके हाथों से. फिर वो अपना धर्म नहीं निभा रहा. वो वैश्य है, वैश्य का काम कर रहा है, फिर भी गलत काम कर रहा है. वो धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा, वो अधर्म कर रहा है, गलत काम कर रहा है अपना वैश्य वाली क्वालिटी यूज करके. अब जो क्षुद्र है, क्षुद्र अगर अच्छे लोगों के यहाँ पे नौकरी करेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, वो धर्म का पालन कर रहा है. लेकिन अगर क्षुद्र किसी क्रिमिनल्स के पास चला जाता है, जो बहुत बड़े बड़े डाकू है और गलत काम करने वाले लोगों के पास जाकर नौकरी करता है, तो क्या वो धर्म कर रहा है? नहीं. तो हर एक ने चूज करना है कि मैंने अपना जो ड्यूटी है वो मैं धर्म के हिसाब से ड्यूटी सिलेक्ट करूंगा या अधर्म के हिसाब से ड्यूटी सिलेक्ट करूंगा. ठीक है. तो कृष्णा कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम तो धर्म के पथ पर फाइटिंग कर रहे हो तो तुम्हें हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है. मतलब तुम्हें हेजिटेशन को क्या कहते हैं, कोई शंका लाने की जरूरत नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ. तुम्हें अपने अंदर कोई डाउट लाने की जरूरत नहीं है. तुम ऐसे
ये मत हो जाओ, हेजिटेट मत हो जाओ, कृष्णा कह रहे हैं, क्योंकि तुम धर्म के पाथ पे ही लड़ाई कर रहे हो। हेजिटेट तो उन लोगों ने होना चाहिए, कर्ण ने होना चाहिए, दुर्योधन ने होना चाहिए, और भीष्म पितामह ने हेजिटेट होना चाहिए, क्योंकि वो अधर्म करके लड़ाई कर रहे हैं। वो लोग अधर्म को फैलाना चाहते हैं, इंटॉक्सिकेशन को फैलाना चाहते हैं, क्रॉस फ्रेंडशिप को फैलाना चाहते हैं राज्य में, और वो लोग मीट ईटिंग को फैलाना चाहते हैं, चारों ही रूल ब्रेक करके गैम्बलिंग को फैलाना चाहते हैं वो लोग। तो वो लड़ाई करके अधर्म फैलाना चाहते हैं। तुम लड़ाई करके धर्म ही फैलाना चाहते हो, तो तुम सही मार्ग पे हो, तुम्हें हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि आपकी ड्यूटी जो होती है ना, वो बहुत मैटर रखती है। अगर आप गलत काम करोगे तो आप कर्म कर रहे हो, फिर भी आपको उससे संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अगर आप धर्म के हिसाब से, आप कोई भी काम पकड़ लो, ब्राह्मण है धर्म के हिसाब से करो, क्षत्रिय है धर्म के हिसाब से काम करो, वैश्य हो तो भी धर्म के हिसाब से काम करो, और क्षुद्र हो, नौकरी कर रहे हो तो भी धर्म के हिसाब से ही नौकरी करो। किसी भी तरीके से आप अगर धर्म के अलाइंड हो, रिलीजियस प्रिंसिपल्स के अलाइंड हो, तो आपको उसमें संतुष्टि प्राप्त होने के चांसेस है, नहीं तो नहीं है। तो पर्पट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि 4 ऑर्डर्स होते हैं सोशल एडमिनिस्ट्रेशन के। द सेकेंड ऑर्डर फॉर द मैटर ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड क्षत्रिय। तो क्षत्रिय जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होता है, जिसको आज इंडिया में क्या कहा जाता है, वर्ल्ड में ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनको क्षत्रिय कहा जाता है, जो कंट्री में लॉ मेंटेन करने की जिम्मेदारी रखते हैं। अभी क्षत मतलब हर्ट, क्षत मतलब क्या होता है? क्षत्रिय मतलब क्षत में हर्ट होता है। वन हु गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म इज कॉल्ड क्षत्रिय। तो क्षत मतलब दुख, और त्रायते मतलब टू गिव प्रोटेक्शन। तो दुख से प्रोटेक्शन देना, हर्ट से मतलब बॉडी को अगर कोई हार्म पहुंचा रहा है, आपकी शरीर को अगर कोई चोट लगाने वाला है, तो उस चोट लगाने वाले से बचाने के लिए क्षत्रिय बने गए हैं। क्षत मतलब शरीर को लगने वाली चोटें, और त्रायते त्रिय, त्रिय मतलब उसका तारण कर देना, त्रायते प्रोटेक्शन देना, उसका रक्षण करना। तो त्रिय का मतलब हो गया रक्षण करना, और क्षत का मतलब हो गया हर्ट। तो हर्ट से रक्षण करने वाले कौन होते हैं? क्षत्रिय। इसलिए क्षत्रियो को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती है, क्योंकि वो दूसरों को हर्ट से बचाते हैं। दूसरों को तकलीफ से जो भी बचाता है, उसको बहुत ज्यादा समाज में रिस्पेक्ट दी जाती है, उसके पास जल्दी फेम आ जाता है, उसके पास क्योंकि वो धर्म का रास्ता अपनाता है। जो धर्म का रास्ता अपनाता है वो कृष्णा का फेवरेट हो जाता है। तो प्रभुपाद कह रहे, क्षत मीन्स हर्ट एंड त्रायते मतलब हर्ट से बाहर निकालने वाला। द क्षत्रियाज आर ट्रेन्ड फॉर किलिंग इन फॉरेस्ट। क्षत्रियो को ट्रेनिंग दी जाती है फॉरेस्ट में किलिंग करने की। फॉरेस्ट में किलिंग करने की ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? क्योंकि अगर एनिमल्स बहुत प्रजा को बचना होता है, इसलिए वो शाबाश। करते हैं। सो क्षत्रिय, सही बात, उनको भी प्रोटेक्शन देते हैं, सही बात है। जंगल में जाके क्षत्रियो को ट्रेनिंग दी जाती है एनिमल्स को मारने की, क्योंकि जंगल में कई सारे जो मुनि बैठे रहते हैं, वो भी वहां पे तपस्या कर रहे होते हैं। तो उन एनिमल्स को पता होना चाहिए कि इंसानों के साथ पंगा नहीं लेना है। साथ साथ उन्होंने नीचे गांव में आकर बच्चों को, बूढ़ों को खाना भी नहीं चाहिए। इसलिए क्षत्रिय जंगल में अंदर अंदर जाके किलिंग इन फॉरेस्ट की उनकी ट्रेनिंग होती थी। प्रभुपाद कहते हैं क्षत्रिय वुड गो इनटू द फॉरेस्ट, चैलेंज अ टाइगर फेस टू फेस एंड फाइट विद द टाइगर विद हिज स्वॉर्ड। तो वो क्या करेंगे? फेस टू फेस टाइगर को चैलेंज करेंगे, और टाइगर जब अटैक करने आएगा तो स्वॉर्ड से उसके साथ फाइटिंग करेंगे। व्हेन द टाइगर वाज किल्ड इट वुड बी ऑफर्ड द रॉयल ऑर्डर ऑफ क्रिमेशन। जब टाइगर को मारा जाता था तो बहुत राज तरीके से, रॉयल तरीके से उसको दफना देते थे, अच्छे से क्रिमेशन करते थे उस टाइगर का। ठीक है, तो पता होता था कि इस राजा ने कितने कितने टाइगर मारे हैं। जहां पे भी टाइगर मारा है उसको लाएंगे, उसकी ऐसे दफना देंगे या जला देंगे, और वहां पे एक मोमेंटो खड़ा कर देंगे कि अच्छा टाइगर 1, टाइगर 2, टाइगर 3। इससे राजा का शौर्य पता चलता था, क्योंकि एक एक टाइगर में
10,000 इंसानों का बल रहता है। कहा जाता है कि एक लायन में 10,000 इंसानों का बल, टाइगर में 10 लोगों का बल रहता है। तो वो बहुत इजीली फाड़ के खा सकता है इंसानों को। अगर वीक इंसान पकड़े तो 500-600 इंसान तो वो एज इट इज खुद ही अकेले मार सकता है। एक टाइगर था और एक छोटा महाराणा प्रताप के टाइम पर, सा उसने एक गांव को पूरी तरह फाड़ डाला था। उसको खाना नहीं था, लेकिन उसको कुछ तो किसी ने तो खिला दिया था जंगल में, कुछ तो वो इससे इतना पागल हो गया था कि उसने जंगल में जाके गांव में जाके 500 लोगों को फाड़ डाला था बिना किसी वजह। खाने भी नहीं था उसको, सारे 500 लोगों को खा भी नहीं सकता, इतना बड़ा पेट भी नहीं है, लेकिन उसने बस सबको फाड़ता फाड़ता चला गया अपने क्लॉज से। तो टाइगर के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, और राजा जब टाइगर को मारता है तो वो राजा की बल का प्रदर्शन होता है। तो राजा वो रॉयल क्रिमेशन होती थी। दिस सिस्टम हैज बीन फॉलोड इवन अप द प्रेजेंट डे बाय क्षत्रिय किंग्स ऑफ जयपुर स्टेट। जयपुर के जो राजा है वो आज भी टाइगर्स को मारने के लिए जाते हैं, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं। हालांकि आजकल लॉ बन गए हैं, फॉरेस्ट के लॉ, वो मारने नहीं देते क्योंकि टाइगर्स खत्म ही होते जा रहे हैं, लेकिन क्षत्रिय किंग्स तब प्रैक्टिस करते थे। The Kshatriyas are specifically trained for challenging and killing because religious violence is sometimes necessary. उनको ट्रेनिंग क्यों दी जाती थी? क्योंकि धर्म के हिसाब से वायलेंस कभी कभी जरूरी हो जाता है। अपनी भूमि को प्रोटेक्शन धर्म है या पाप है? अधर्म है। अपने देश का रक्षण करना, हाँ धर्म है। तो अपने देश के रक्षण के लिए वायलेंस करना धर्म है या अधर्म है? धर्म। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो वायलेंस किया ब्रिटिशर्स पे, ये मार के, गोली बारूद मार के, वो धर्म था या अधर्म था? धर्म। धर्म था, सही बात है। तो ऐसा कोई नॉनसेंस झेलना नहीं चाहिए। जहां पे आपके तो भूमि की रक्षण की बात आती है, वहां पे कोई भी नॉनसेंस या ऐसा सहन नहीं करना चाहिए, अधर्म सहना नहीं चाहिए। उसको धर्म के बेसिस पर वायलेंस करके उनको वापस भेज देना चाहिए, ऐसे लोगों को जो अटैक करते हैं। Therefore, Kshatriyas are never meant for accepting the order of संन्यास। तो क्षत्रियो को क्या बोला जाता है कि आप कभी संन्यास, उनके लिए बोला जाता है कि आप संन्यास के लिए ये नहीं हो, ऑर्डर किया जाता है कि एक मिनट मैं आप सबको म्यूट पे डाल रही हूँ। हाँ ठीक है। So, Kshatriya are never meant for accepting directly order of संन्यास और रिनंसिएशन। क्षत्रियो को डायरेक्टली ऐसे किसी ने ऑर्डर दी नहीं है कि आप संन्यास लो और वैराग्य करो। पृथु महाराज ने किया, पृथु महाराज पूरे समाज को सिखाना चाहते हैं, लेकिन क्षत्रियो के लिए ऐसी कोई ऑर्डर है नहीं कि उन्होंने संन्यास लेना ही लेना है। और रिनंसिएशन मैं क्यों बताऊं, पता है? इंडियन आर्मी में आज भी अगर कोई रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद भी अगर लड़ाई छिड़ जाती है पाकिस्तान से या चाइना से, आपको वापस बुलाया जा सकता है लड़ाई के लिए। तो आप रिटायर होके भी ऐसा नहीं होता कि आप रिटायर्ड हो, छुट्टी मना रहे हो और आपको बुलाया नहीं जाएगा। अगर आपको आर्मी बुलाएगी वापस तो आपने जाना है लड़ाई करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों को पूछा गया था चाइना वॉर के वक्त कि लड़ाई अगर लड़ाई छिड़ेगी तो आप जाओगे क्या, आप तो रिटायर्ड हो? तो उन्होंने कहा अरे बिल्कुल हम जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे, हम तो जाना चाहेंगे, देश के लिए लड़ना तो हाँ, फक्र की बात है। ऐसे करके सब लोग रेडी हो जाते हैं। सो वंस अ क्षत्रिय ऑलवेज अ क्षत्रिय। फिर आप आईएएस ऑफिसर हो या आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाते हो, रिटायरमेंट के बाद अगर कोई छानबीन होती है और आपकी जरूरत पड़ जाती है, वो छानबीन में आपकी कोई कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, तो आप रिटायर हो चुके हो तो भी आपको वापस जाना पड़ेगा गवर्नमेंट को मदद करने के लिए, देश को मदद करने के लिए। सो एक क्षत्रिय के लिए ऐसी कोई ऑर्डर है नहीं कि आपने संन्यास लेना ही लेना है और आपने रिनंसिएट होना ही होना है, क्योंकि वंस यू आर अ क्षत्रिय, मरते दम तक आप देश की मदद में, देश की सेवा में हेल्पफुल रहते हो। सो नॉन वायलेंस इन पॉलिटिक्स मे बी डिप्लोमेसी बट इट इज नेवर अ फैक्टर ऑफ प्रिंसिपल। प्रभुपाद कहते हैं कि जो नॉन वायलेंस है, नॉन वायलेंस को क्या कहते हैं? अहिंसा। पॉलिटिक्स में अगर अहिंसा है तो वो एक पॉलिटिकल डिसीजन हो सकता है, डिप्लोमेसी हो सकती है, मतलब उसके पीछे पक्का किसी ना किसी का फायदा होता है। पॉलिटिक्स में अगर आप ये कर रहे हो, अहिंसा फॉलो कर रहे हो, अहिंसा मतलब किसी को आपने हार्म ही नहीं करना, बिल्कुल भी हार्म नहीं करना, ऐसा अगर डिसीजन लेकर आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो तो डेफिनेटली आप सिर्फ अपना ही फायदा कर रहे हो। आप बहुत सेफ 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 खेल खेल के ऊपर जाना चाहते हो,
सो पॉलिटिक्स में अहिंसा अलाउड नहीं है। पॉलिटिक्स में आपको हिंसा करनी पड़ती है क्योंकि लोगों को, आपको बुरे लोगों से बचाना होता है। बुरे लोगों को मारने के लिए हिंसा काम आती है। इट इज नेवर अ फैक्टर ऑफ प्रिंसिपल। ऐसा कोई प्रिंसिपल किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। आप सारे अपने उपनिषद पढ़ लो, अपने वेद पढ़ लो, जहां पे भी ये पॉलिटिक्स सिखाया गया है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि अहिंसा मैंडेटरी है देश चलाने के लिए। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। सो इन रिलीजियस लॉ ऑफ बुक्स, देखो प्रभुपाद यहाँ पे रिलीजियस लॉ मतलब धर्म के हिसाब से जो लॉ बुक्स है, लॉ के बुक्स होते हैं ना, उसके बुक्स में लिखा है इन द बैटल फील्ड किंग और क्षत्रिय while fighting another king envious of him is eligible for achieving the heavenly planets of after death। तो उन्होंने कहा है कि जो भी राजा या क्षत्रिय दूसरे राजा से लड़ाई करता है, जो राजा उससे बहुत ज्यादा मत्सर कर रहा है, एनवियसनेस कर रहा है, दूसरे राजा को इस राजा से कुछ चाहिए, और अगर ये राजा उसको डिफेंड करते करते मर जाता है तो उसको क्या मिल जाता है? मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति मिल जाती है। लेकिन अगर एक राजा खुद अटैक करके जा रहा है दूसरे राजा पर, उसकी जमीन हड़पने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी, उसका महल चाहिए, उसको उसकी रानियां चाहिए ढेर सारी, और उसको दासियां भी चाहिए, उसको उसकी सब कुछ चाहिए, पूरी प्रजा चाहिए, और उसके देश को अपने देश में मिक्स कराना है उसने, ऐसे करके ऐसे राजा अगर उस लड़ाई में मरा तो उसको कहाँ की प्राप्ति होगी? नर्क की प्राप्ति होगी। अब समझ में आया? तो जो राजा बैटल फील्ड पे अपनी जान दे देता है अपने कंट्री को बचाने के लिए, उसको कहाँ मिलता है? कौन सा लोक मिलता है? स्वर्ग लोक मिलता है। प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे एक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मणर्स आल्सो अटेन हेवनली प्लैनेट्स बाय सैक्रिफाइसिंग एनिमल्स इन सैक्रिफिशियल फायर। आपने ब्राह्मणों को कभी एनिमल्स को मारते हुए देखा है? खाते हैं एनिमल्स? वो नहीं खाते। लेकिन यही ऋषि मुनि जो होते हैं अश्वमेध यज्ञ करते हैं, अलग अलग यज्ञ करते हैं। यज्ञ में कभी कभी एनिमल्स की आहुति देनी पड़ती है, ठीक है? तो एनिमल्स की आहुति देना मतलब एनिमल किलिंग होती है यज्ञ में। उनको वो यज्ञ में उस एनिमल किलिंग करने से उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि यज्ञ में जिस भी एनिमल की आहुति चढ़ती है, बलि दी जाती है, उस यज्ञ में वो एनिमल का आत्मा को ऑन द स्पॉट मनुष्य का शरीर मिल जाता है। इमीडिएटली उसका रीबर्थ होता है मनुष्य शरीर में। आप किसी भी एनिमल को ले लो, उसकी पूरी आगे की 84 लाख योनियों में से मान लो 40 लाख योनियां बची है। 40 लाख अगर योनियां बची होंगी तो वो 40 लाख योनियां उसकी कैंसिल हो जाएंगी और वो इमीडिएटली डायरेक्टली वापस इंसान के शरीर में आ जाएगा। सो ये बेनिफिट होता है। और क्योंकि ब्राह्मण किसी की यज्ञ में किसी की जान देकर उसकी आगे की 40 लाख योनियां बचाता है और ह्यूमन बर्थ देता है, जिससे कि उसको भक्ति मार्ग में मदद हो पाए, क्योंकि सिर्फ मनुष्य शरीर में ही आप हरि नाम ले सकते हो और भक्ति कर सकते हो। तो इसलिए उसने उसका भला किया, इसलिए उस ब्राह्मण को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों चीजें सुनने में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। प्रभुपाद कहते हैं कि सुनने में बहुत ज्यादा हार्ड लगता है कि ब्राह्मण एनिमल को मार रहा है और क्षत्रिय राजा दूसरे इंसानों को मार रहा है, जबकि क्षत्रिय ने इंसानों को नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मणों ने एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। सुनते वक्त बहुत कठिन लगता है सुनने में, लेकिन अगर आप धर्म को समझो तो आपको बहुत नेचुरली समझ जाएगा कि स्वर्गलोक की प्राप्ति इनको क्यों हो रही है। क्षत्रिय अपने देश के प्रजा को बचाते बचाते जान दे रहा है, इसलिए उसको स्वर्गलोक, क्योंकि वो लोगों की जान बचा रहा है अपने देश की। और साथ साथ जो ब्राह्मण लोग किसी आत्मा को मनुष्य जन्म देने के लिए उसका जर्नी शॉर्टकट कर रहा है, उसको भी स्वर्गलोक प्राप्त होता है। देयरफॉर किलिंग ऑन बैटलफील्ड ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड किलिंग एनिमल्स इन सैक्रिफिशियल फायर इज नॉट कंसिडर्ड टू बी वायलेंस। प्रभुपाद कहते कि किसी भी युद्ध भूमि में लोगों को मारना नॉन वायलेंस वायलेंस नहीं समझा जाता, और यज्ञ में एनिमल को मारना वायलेंस नहीं समझा जाता। बिकॉज एवरीवन इज बेनिफिटेड बाय रिलीजियस प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व। जहां पे धर्म इन्वॉल्व है वहां पे सबका ही फायदा हो जाता है। द एनिमल sacrificed gets a human life immediately without undergoing the gradual process from one form to another। देखो मैंने बताया था ना, प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जो एनिमल की सैक्रिफाइस होती है, he gets a human life immediately।
ये वर्ड याद रखना, आपके पास भगवत गीता होगी तो अंडरलाइन करके रखना कि एनिमल सैक्रिफाइस गेट्स ह्यूमन लाइफ इमीडिएटली। ये वाली लाइन आप अंडरलाइन करके रखना, ठीक है। भगवत गीता में एनिमल सैक्रिफाइस गेट्स अ ह्यूमन लाइफ इमीडिएटली, इमीडिएटली उसको ह्यूमन लाइफ मिलती है। ऐसा नहीं कि 45 दिन आत्मा यमदूतों के साथ जर्नी करेगी उसके बाद उसको ये मनुष्य जन्म, ना 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 ना, ऐसा कोई बहुत टाइम नहीं लगता, 3 सेकंड लगते हैं। 3 सेकंड के अंदर आत्मा एनिमल योनि से, प्राणी की योनि से कहाँ चली गई होती है, मनुष्य की योनि में चली गई होती है, सिर्फ 3 सेकंड में। इतना कम टाइम में उसका ट्रांसफर होता है। सो विदाउट अंडरगोइंग एवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। नाउ क्षत्रिय किल्ड ऑन द बैटल फील्ड ऑल्सो अटेन्स हेवनली प्लैनेट्स। क्षत्रिय को भी इमीडिएटली हेवनली प्लैनेट दिया जाता है। क्षत्रिय को तकलीफ देते देते नहीं लेके जाते स्वर्ग लोक। जैसे हमने भौतिकवादी की जर्नी पढ़ी थी हमने लॉर्ड कपिला के इसमें सांख्य योग में, उसमें अलग होता है। लेकिन क्षत्रिय का जो जर्नी होती है, जैसे ही वो बैटल फील्ड में अपना शरीर छोड़ देता है, वो इमीडिएटली प्रकट हो जाता है स्वर्ग लोक में। वहां पे स्वर्ग लोक में किसी ना किसी फैमिली में उसको इमीडिएटली जन्म मिल गया होता है। एंड एज डू ब्राह्मण, ब्राह्मण भी जो तो ये करेगा, यज्ञ करेगा और किसी एनिमल को मदद करेगा, वो मृत्यु के बाद इमीडिएटली स्वर्ग लोक के लिए जाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसलिए आप देखो पहले वाले जमाने में जब भी यज्ञ होते थे तो 10-10 हजार ब्राह्मण आकर यज्ञ में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ब्राह्मण मिलकर यज्ञ कर रहा है, 10 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, 10-10 हजार ब्राह्मण आकर यज्ञ में पार्टिसिपेट करते थे। उनको पता था कि इस यज्ञ में मंत्र पठन करके जो भी एनिमल की आहुति चढ़ेगी, इस बार सबको 10,000 के 10,000 ऋषि मुनियों को स्वर्ग लोक गारंटीड मिलेगा। फिर चाहे वो बीच में इनकी मृत्यु हो जाए, यज्ञ छोड़ते छोड़ते जाते जाते उनको सांप काट जाए और वो आगे की अपना मेडिटेशन पूरा ना कर पाए, कुछ भी हो सकता है, बीमारियां हो सकती है, सांप काट सकता है या शेर खा सकता है उनको जंगल में, तो इनकी भी लाइफ पता नहीं होती कब मरेंगे। तो इनको इतना पता था कि हमारी मिनिमम हम स्वर्ग लोक तक डेफिनेटली पहुंचेंगे अगर हमने इस यज्ञ में पार्टिसिपेट किया तो। इसका प्रूफ है रामायण में विश्वामित्र जी ने जो यज्ञ किए थे उसमें बहुत सारे ऋषि मुनि आकर पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर जब शानक आदि ऋषि भी आए थे दंडकारण्य में, वहां पे भी 10,000 से ज्यादा ऋषि मुनि आकर भागवत सुनने वाले थे, तो वो यज्ञ ही था। फिर श्री राम जी जब अयोध्या छोड़कर जा रहे थे और जब जंगल में गए थे, वहां पे भी 10,000 से ज्यादा ऋषि मुनि यज्ञ में बिजी थे। इससे हमें पता चलता है कि सारे ऋषि मुनियों को बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन उनकी पूरी हो चुकी होती है यज्ञ में, दे आर एलिजिबल टू गो टू स्वर्गलोका। नाउ देर आर 2 काइंड्स ऑफ स्वधर्म, 2 तरीके की स्पेसिफिक ड्यूटीज होती है। स्वधर्म मतलब स्पेसिफिक ड्यूटी। एज लॉन्ग एज वन इज नॉट लिबरेटेड वन हैज टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ बॉडी। देखो आप लोग पूछते हो ना कभी कभी कि हमने देवताओं का करना है क्या, हमने क्रियाकर्म करने हैं क्या, हमने ये करना है क्या, वो करना है क्या। जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तब अपने आप को पूछना, क्या मैं बद्ध जीव हूं या मैं मुक्त जीव हूं। प्रभुपाद बता रहे हैं जब तक तो आप मुक्त जीव नहीं बने हैं, एज लॉन्ग एज वन इज नॉट लिबरेटेड। मुक्त जीव कौन होता है, शरीर में ही रहकर वो पूरी तरह कृष्णमय हो गया होता है। मतलब 24 घंटे में उसका 1 सेकंड भी ऐसा नहीं होता जहां पे वो कृष्ण भगवान के बारे में नहीं सोचता। मुक्त जीव के एग्जाम्पल्स कौन कौन है, प्रभुपाद है, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, सारे हमारे षड गोस्वामी है, फिर हमारे प्रभुपाद है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, भक्ति विनोद ठाकुर जी है, गौर किशोर दास बाबा जी है, जगन्नाथ दास बाबा जी है। ये सारे लोग जो है मुक्त जीव है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं मुक्त जीव हूं या नहीं, अपने आप को इनके साथ चेक करना कि मैं मुक्त जीव बना या नहीं बना। अगर नहीं बनाऊं तो मेरे लिए क्या भला है, परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ बॉडी। तो जो भी शारीरिक धर्म है वो निभाने पड़ेंगे। शारीरिक धर्म में माता पिता की सेवा, पत्नी की सेवा, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, समाज की सेवा, देवते की सेवा, अपने गोत्र में जो भगवान आते हैं उनकी भी पूजा करना, फिर अपने भगवानों को भोग लगाना, कृष्णा को तो भोग लगाना ही है,
लेकिन जब भी श्राद्ध देने का टाइम आता है हमारे परिवार के लोगों को, तो वो श्राद्ध हर साल देना ही देना, ब्राह्मण भोज कराना, ब्राह्मणों को कृष्ण भगवान का प्रसादम खिलाना, दान धर्म करना, ये सारे शरीर के धर्म होते हैं। तो वो शरीर के धर्म निभाने चाहिए, जब तक तो आप मुक्त जीव नहीं बनते। मुक्त जीव कब बन जाते हो? जैसे ही आप कंटिन्यूअसली हरि नाम के आदी हो जाते हो। जैसे तुकाराम महाराज थे। तुकाराम महाराज शादी में रहकर भी हमेशा विठ्ठल विठ्ठल करते रहते थे, उनके मन में कभी और कोई विचार आए ही नहीं। तो वो है मुक्त जीव। तो आपको मुक्त जीव का एग्जाम्पल चाहिए, तो इन सबको याद रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा डेफिनेशन में उलझना नहीं पड़ेगा कि एग्जैक्टली होता कैसे मुक्त जीव। ये सारे आचार्यों को याद रखना। तुकाराम महाराज की बहुत अच्छी मूवी भी आती है, एक मराठी मूवी है, आप देख लेना वो। उसमें आपको तुकाराम महाराज का चरित्र बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वो सिर्फ भगवान के बारे में सोचते थे। इसको कहते हैं मुक्त जीव। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जब तक तो आप मुक्त जीव नहीं बनते, तब तक आप बॉडी के धर्म निभाओ। आपके बॉडी जो जो धर्म के लिए बनी है वो निभाओ, धर्म के हिसाब से, रिलीजियस प्रिंसिपल्स को पकड़कर, जिससे आप मुक्त जीव बन पाओ। तो शरीर में रहकर मुक्त जीव बनने के लिए लगातार राम नाम लेना, हरि नाम लेना, यही एक मार्ग है। कंटिन्यूअस नाम लेने से आप मुक्त जीव बन जाओगे। नाउ व्हेन वन इज लिबरेटेड वन स्वधर्म। अब मान लो आप मुक्त जीव बन गए, आप ऑलरेडी मुक्त जीव बन गए हो, तो आपकी स्पेसिफिक ड्यूटी क्या हो जाती है? आपकी स्पेसिफिक ड्यूटी बनती है बिकम स्पिरिचुअल इज नॉट इन मटीरियल बॉडीली कंसेप्ट। मतलब आपकी स्पेसिफिक ड्यूटी बन जाती है आध्यात्मिकता को फॉलो करना, कृष्ण की सेवा करना। आपने शरीर धर्म से बाहर निकल आना होता है, फिर आप बंधित नहीं रहते। जैसे प्रभुपाद जब पूरी तरह स्पिरिचुअलाइज हो गए थे, तो उनपे कोई बंधन नहीं था कि अभी तो परिवार का ख्याल रखना ही रखना है। तुकाराम महाराज जब पूरी तरह स्पिरिचुअलाइज हो गए, उनपे भी कोई कंडीशन नहीं थी कि उनके 3 छोटे बच्चे हैं और उनका ख्याल उन्होंने रखना ही रखना है, वाइफ का ख्याल रखना ही रखना है। जैसे ही आप स्पिरिचुअलाइज मुक्त जीव बन जाते हो, आप इस रूल के परे चले जाते हो कि पत्नी का ध्यान नहीं रखना, बच्चे का ध्यान नहीं रखना, माँ बाप का नहीं। आप देखो बहुत सारे संत लोग हैं, उनके माँ बाप का ध्यान भगवान ने स्वयं आकर रखा है, उनके बच्चों का ध्यान भगवान स्वयं आए हैं बच्चों का ध्यान रखने के लिए। लेकिन क्यों? कब? जब भक्त मुक्त जीव बन गया। तो बीच में छोड़ने की सोचना भी नहीं है। अगर आपको ऐसे किसी ने बताया होगा कि आप क्योंकि वैष्णव हो, आप हरि नाम ले रहे हो, इसलिए आप ये बाकी सारी चीजें करना छोड़ दो, तो थोड़ा सोच के देखना, अपने आप को टटोलना, क्योंकि कोई आपको मुंह पे आके कभी नहीं बताएगा कि आप शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हो। ये आपको खुद ही पता होगा कि जब आपको कोई देखता नहीं है तब आप क्या करते हो। उसके बेसिस पे आपको खुद ही पता चलना चाहिए कि मैं मुक्त जीव हूं या नहीं हूं। अगर मुक्त जीव नहीं हो तो कोई अगर आपको कितना भी बोले कि अरे आप तो हरि नाम लेते हो, आप तो वैष्णव हो, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो सुनना नहीं। चुपचाप अपने फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना। फैमिली बोलेगी देवते के दर्शन करने जाने, चले जाना। फैमिली बोलेगी देवते के पूजा करनी है, कर लेना। फैमिली बोलेगी गणपति बिठाना है, बिठा देना। फैमिली बोलेगी नवरात्रि मनाने, मना लेना। फैमिली अगर बोलेगी बाकी सारी आपने तीज भी करनी है, करवा चौथ भी करना है, वट पूर्णिमा भी करनी है, और अलग अलग फंक्शंस करने हैं आपने, हड़ताल का भी करनी है, कर लेना। मना नहीं करना, जब तक तो मुक्त जीव नहीं बनते। एक बार कंटिन्यूअसली मीरा की तरह, तुकाराम महाराज की तरह, हमारे आचार्यों की तरह, गोस्वामियों की तरह जब गोस्वामी बन जाओगे, गोस्वामी मतलब क्या? सारे इंद्रियों पे पूरी तरह कंट्रोल जब आ जाएगा, तब आराम से ये सारे धर्मों को छोड़ देना। क्योंकि एक शुद्ध भक्त जो होता है वो ऐसे रूल्स से बंधित नहीं रहता। लेकिन जब तक शुद्ध भक्त नहीं होते, तब तक समाज में लड़ाइयां करके फैलानी नहीं चाहिए। परिवार में लड़ाई नहीं करानी चाहिए दो लोगों में। खुद ही ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई हम तो कृष्ण भक्त है, हम ऐसा कुछ करते नहीं। अपने आप को यूनिक दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं अलग हूँ और मेरी तरह हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, जी हम वैष्णव है, इस तरीके से करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पूरा समाज को तोड़ने का काम नहीं करना है। समाज में हमेशा एक वैष्णव होता है, वो समाज को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। इसलिए बहुत ज्यादा केयरफुली अपने आप को टटोलना होता है कि मैं मुक्त जीव हूं या नहीं हूं। अब एक बार मुक्त जीव बन गए, एक बार ऐसे आपको समझ में आ गया अब मैं वृंदावन के बिना रह नहीं सकती,
मैं मायापुर में रहे बिना नहीं रह सकती, किसी को जगन्नाथपुरी में रहना होता है, अगर मैं जगन्नाथपुरी छोड़ जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। अगर आपको ऐसा लगा कि मैं पूरी तरह स्पिरिचुअलाइज हो गया हूँ या हो गई हूँ, देन यू कैन डेफिनेटली लीव एवरीथिंग। फिर तो आप एलिजिबल हो जाते हो पृथु महाराज की तरह, कि पूरे देश को छोड़ सकते हो, बच्चों को छोड़ सकते हो, सबको छोड़ के वानप्रस्थ चले जा सकते हो। वैसी वाली चैतन्य महाप्रभु के लाइफ में बहुत जल्दी कंडीशन आ गई थी। 24 साल की उम्र में ही चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह विरक्त हो गए थे, स्पिरिचुअलाइज हो गए थे। वो गोपी का नाम लेकर, राधा का, कृष्णा का नाम लेकर बेहोश होने लगे थे। तो वो इतने ज्यादा उनकी बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो गई थी, मुक्त जीव बन गए थे, कि उनका तो रहना बनता ही नहीं था फैमिली में। तो वो वाला टाइम आने के लिए वेट करना है। अब जब तक वो टाइम आता नहीं, तब तक अपने आप को स्पेशल अटेंशन या फिर स्पेशल समझना और अपने परिवार के रूल्स ब्रेक करना, ये सारे काम नहीं करने हैं। परिवार के रूल्स के साथ साथ चलना है, अपनी अपनी फैमिली के रूल्स होते हैं वो फॉलो करना है, साथ साथ कृष्ण भक्ति भी करनी है। आपको हरिनाम लेने से कोई नहीं रोकता, मन में कृष्णा की सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता। किसी को नहीं पता सुबह उठ के आप हरि के चरणों की पूजा करते हो, किसी को नहीं पता नहाते वक्त आप चुपचाप भगवद गीता के श्लोक गा रहे हो मन में, किसी को नहीं पता होता ब्रश करते वक्त आप शिक्षाष्टकम गा रहे हो, किसी को समझ में नहीं आता आप बाल बनाते वक्त आप गुरु पूजा कर रहे हो, मन ही मन में आरती कर रहे हो। किसी को कुछ समझ में नहीं आना है, आपने मनस्वी पूजा करते रहनी है, करते रहनी है। लेकिन जब तक मुक्त जीव नहीं बनते तब तक परिवार के साथ लड़ाई करनी नहीं है, वो भी भक्ति को लेकर, क्योंकि तब तक तो भक्ति अभी मच्योर हुई नहीं है। तो किस बेसिस पे अपने आप को आप एडवर्टाइज करोगे? ठीक है। सो इन द बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ देर आर स्पेसिफिक ड्यूटीज फॉर ब्राह्मणाज एंड क्षत्रियाज रिस्पेक्टिवली। बॉडी में जो आत्मा रहती है उसके लिए अलग अलग ड्यूटीज होती है। ब्राह्मण की बॉडी में रहने वाली आत्मा को दूसरी ड्यूटी है, क्षत्रिय की बॉडी में रहने वाली आत्मा को अलग ड्यूटी होती है। ये ड्यूटी अनअवॉइडेबल है। देखो ये शब्द है ना, ये अंडरलाइन करके रखो, भगवत गीता में बहुत इंपॉर्टेंट है, अनअवॉइडेबल। आपको अगर लगेगा ना मेरा मन कर रहा है घर छोड़ के भागने का, अनअवॉइडेबल है, ये तो करना ही पड़ेगा। आपको मन कर रहा है स्कूल छोड़ के भागने का, नहीं पढ़ाई करने का मन कर रहा, भाग जाओ कहीं पे। कभी भी क्विट करने का मन करेगा, मन में ऐसा लगेगा कि मुझे ये करने का मन नहीं कर रहा, क्विट करने का, तो सोचना मेरी ड्यूटी अनअवॉइडेबल है। कई बार लोगों को लगता है कि अरे परिवार वाले बहुत तंग कर रहे हैं, भाग जाने का मन कर रहा है। नहीं, ड्यूटी तो अनअवॉइडेबल है, करनी तो करनी है, फर्ज है, निभाना ही निभाना है, कर्तव्य है, करना ही करना है। ऐसे थोड़ी ना कुरुक्षेत्र छोड़कर भाग सकते हैं, भगौड़े थोड़ी ना है हम। तो ड्यूटीज आर अनअवॉइडेबल, प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, हमारे गुरु हमें बता रहे हैं। हम गुरु की आज्ञा का अवहेलना या अवज्ञा करते नहीं है, गुरु जो बताते हैं हम चुपचाप सुन लेते हैं। प्रभुपाद सीधे हमें बता रहे हैं कि आप जिस भी आत्मा जिस भी बॉडी में है, आप उसकी ड्यूटी निभाओ। देखो कर्ण को बॉडी मिल गई थी, अब कर्ण को जब बोला गया कि तुम तो सूत पुत्र हो, तुम तो क्षुद्र हो, ऐसे जब बोला गया उसको बड़ी बुरा लगा। अब था ना, वो सूत फैमिली में बड़ा हो रहा था, उसकी ड्यूटी थी घोड़ों को चराना, घोड़ों का टेक केयर करना और रथ को साफ रखना। वो अपनी ड्यूटी के बाहर चला गया और क्षत्रिय बनने की कोशिश करी उसने। भले जन्म से क्षत्रिय था लेकिन कर्म से तो सूत पुत्र ही था। बाद में क्योंकि उसकी बुद्धि भी कोई सही ठिकाने पर आई नहीं, पूरी लाइफ कंफ्यूज किया। आपकी ड्यूटी जो होती है ना वो अनअवॉइडेबल होती है। कर्ण की ड्यूटी थी, उसको बड़ा किया था अधिरथ बाबा और राधा माता ने, तो उसने अधिरथ बाबा और राधा माता की सेवा करते करते अपना पूरा जीवन बिता देना चाहिए था, क्योंकि उसको दूध पिलाया था राधा माता ने। अब जो माँ दूध पिला रही है उस माँ को छोड़कर तू अंगदेश के पीछे पड़ा है, दुर्योधन के साथ दोस्ती करने के पीछे पड़ा है। अब आप कर्ण ने इतना सारा दान धर्म किया, फिर भी फायदा क्या हुआ? अपकीर्ति तो होनी थी तो वो तो हो गई। उसने सारे, उसको लगा मैं अंग देश का राजा बन जाऊंगा, मैं हर रोज दान करूंगा। हर रोज खड़ा हो जाता था धूप में और ढेर सारे गरीबों को दान करता था। लेकिन इससे उसने किया गया पाप अपने माता पिता के प्रति, द्रौपदी के प्रति वो पाप कम हुआ? अपनी भाभी के प्रति पाप किया, अपने माता पिता के पाप। तो आप घर में ही ऐसे काम करोगे और बाहर जाके करोड़ों करोड़ों लोगों को दान करोगे, फिर भी अपकीर्ति होनी होती है, होनी है, वो होगी ही। इससे अच्छा तो अर्जुन ने कुंती माता का रक्षण किया,
युधिष्ठिर महाराज ने कुंती माता की बात सुनी। ये 5 पांडव पूरी दुनिया को दान करते नहीं फिर रहे थे, इन्होंने बस अपनी पत्नी और माँ, इनका रक्षण किया। पत्नी को भी बाद में जो जस्टिस देना था वो दे दिया। बाद में जयद्रथ आया था तो कितना अच्छे से प्रोटेक्शन हुआ द्रौपदी का, कुछ द्रौपदी को हानि नहीं होने दी पांडवों ने। फिर युधिष्ठिर महाराज ने कुंती माता को हानि नहीं होने दी। इतने दिन कुंती माता इन लोगों के साथ रही, लेकिन कोई उनका बाल बांका नहीं कर पाया। तो घर वालों का तो पहले रक्षण करो, फिर बाहर जाके दान धर्म के बारे में सोचना। इनकी पांडवों की कितनी कीर्ति है, आज तक सब लोग उनका नाम लेते हैं। लेकिन कर्ण ने क्या किया, अपनी ड्यूटी ही छोड़ दी। भाई तू क्षत्रिय है, तू गृहस्थ आश्रम वाला इंसान है, तू गृहस्थी पे ध्यान दे दे। तू क्षत्रियता अगर नहीं है, तू क्षुद्र अभी परिवार में तेरा सेटअप करके दिया है कृष्णा ने, तो तू एक्सेप्ट कर ले, तू क्षुद्र परिवार में है और अपनी अपनी गृहस्थी अच्छे से निभा दे, फिर ज्यादा कीर्ति होती। जब बाद में पांडवों को पता चलता कि अरे ये क्षुद्र परिवार में पलने वाला भाई तो हमारे बड़े भाई है, फिर युधिष्ठिर महाराज सब लोग खुद आते और कहते कि प्लीज आप राजा बन जाओ और हम आपको गाइड करेंगे राज्य चलाने में, हम आपको ऐसे देख नहीं सकते, हम आपको ऐसे क्षुद्र परिवार में अभी देख नहीं सकते। ऐसे करके उनको बहुत रिस्पेक्ट से कर्ण को राजा बना देते, लेकिन कर्ण ने खुद ही अपने पाव पे कुल्हाड़ी मार ली। तो ऐसे करके प्रभुपाद जो बता रहे हैं ना, ऐसी हवा में नहीं बता रहे, आपको समझना पड़ेगा। ड्यूटीज आर अनअवॉइडेबल, कितना भी मन करे परिवार छोड़ने का, कॉलेज छोड़ने का, स्कूल छोड़ने का, नौकरी छोड़ने का, कभी कभी अपना शरीर छोड़ने का मन करता है, लेकिन याद रखना मेरा कर्तव्य क्या है। ड्यूटी अनअवॉइडेबल होती है, आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। मान के चलो कर्ण की तरह अवॉइड भी कर लिया तो यू आर अप फॉर अ वेरी बिग प्रॉब्लम्स इन लाइफ। आप एक प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए भागोगे, दूसरे बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे। जैसे कर्ण फंस गया, कर्ण इतना बुरी तरह फंसा था, वो चाहे भी तो अंगदेश को गिव अप करके वापस सूत पुत्र नहीं बन सकता था। एक बार अंगदेश बन गया, अंगदेश का राजा बन गया, क्षत्रिय का टाइटल लग गया, अब वो चाहे भी तो यू टर्न नहीं ले सकता, क्योंकि दुर्योधन ने तो उसको काटना है, तलवार से काट देता उसका गला। वो दुर्योधन को पता चलता कि जिसपे मैंने भीख देकर उसको राजा बनाया वो एकदम मुकर गया, नमक हराम निकला। तो उसकी तो नौकरी बन के रहा ना कर्ण, हमेशा दुर्योधन का दोस्त बनकर तो नहीं रहा, नाम के लिए दोस्त था लेकिन नौकरी ही कर रहा था उसके अंडर। तो क्षुद्र वाला काम ही किया उसने। दुर्योधन उसको ऊपर ऊपर से दोस्त बोलता रहा, लेकिन कर्ण के अंदर तो क्षुद्रता वाली ही क्वालिटी रही, क्योंकि वो नौकरी की तरह ही दुर्योधन जो बोलेगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करता हूँ, हाँ ठीक है करता हूँ, हाँ ठीक है करता हूँ, हर चीज को हाँ हाँ बोलता गया। तो नौकरी में यही तो करना पड़ता है, हाँ 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 ही बोलना पड़ता है, आप मना नहीं कर सकते हर चीज को, मना करोगे तो दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ती है। तो ऐसे करके कर्ण ने क्षुद्र वाला ही काम किया, क्षत्रिय तो बना नहीं। अगर दोस्त होता तो किसी भी टाइम पे उठकर बोल सकता था नो आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। बलराम जी ने सीधे कृष्णा को बोला मैं क्षत्रिय होकर भी मैं कुरुक्षेत्र युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ये होता है क्षत्रिय। अगर सच में दोस्ती है तो आप नो भी बोल सकते हो। क्षुद्र हो और क्षत्रिय हो, ऐसी आपकी नौकरी वाली मेंटालिटी है तो आपको तो नो बोलना आ ही नहीं सकता। तो कर्ण ने वही काम किया। फिर दुर्योधन का हमेशा नौकर बन के ही रहा, वो कभी दोस्त नहीं बन पाया, चाहे भी तो, चाहे उसने उठते बैठते उसके साथ लंच किए होंगे, डिनर किए होंगे, लेकिन वो दोस्त नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी छोड़ दी थी, कर्तव्य छोड़ दिए थे। उसके पिताजी ने उसको परमिशन नहीं दी थी दुर्योधन के से कोई गिफ्ट एक्सेप्ट करने की, पिताजी की बात नहीं मानी। उसकी माता ने बोला था हम तुम्हारे साथ महल में शिफ्ट नहीं होंगे, हम जिस गरीब घर में रह रहे हैं वहीं पे हम रहेंगे, तुम्हें आके हमारे साथ रहना है तो रहो। तो कर्ण ने अपने माता पिता जिसने उसका टेक केयर किया था उनको भी छोड़कर महल में रहने के लिए गया। ये होता है अधर्म। ठीक है, सो ड्यूटीज आर अनअवॉइडेबल। इसलिए आप देखो आज भी जितने भी लोग होते हैं अपने माता पिता को छोड़ के अमेरिका से अगर किसी और कंट्री में चले जाते हैं तो वो बहुत आत्मग्लानि में रहते हैं कि बूढ़े माता पिता को मैंने अपने देश में अकेला छोड़ दिया है और मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। फिर इंडिया के लोग भी अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। यहाँ बूढ़े माता पिता मृत्यु आ जाती है उनकी तो उनको बहुत बुरा लगता है, वो आगे की जिंदगी रोते रोते बिताते हैं। उनको पता होता है उन्होंने अधर्म किया है, कोई उनको मुंह पे बोलने नहीं जाएगा, लेकिन अंदर से ही उनका परमात्मा उनको बोलता है बेटा तुमने जो किया है वो गलत किया है, तो वो आत्मग्लानि में जीते हैं। सो जो ड्यूटी गिव अप करेगा ना उसको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं
ड्यूटीज आर अनअवॉइडेबल। जब तक तो शरीर मुक्त जीव नहीं बनता, जब तक तो आप मुक्त जीव नहीं बनते, तब तक आपको ड्यूटीज करनी ही पड़ेगी, उसमें आपको कोई और ऑप्शन है नहीं। स्वधर्म is ordained by Lord and thus this will be clarified in 4th chapter। 4th chapter पे स्वधर्म बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। 4था चैप्टर में जाएंगे तो ऑन द बॉडी प्लेन स्वधर्म इज कॉल्ड वर्णाश्रम धर्म। शरीर के लेवल पर स्वधर्म मतलब ही वर्णाश्रम धर्म है। आत्मा के लेवल पे स्वधर्म मतलब ही कृष्णा का दास बनना और कृष्णा की सेवा करना, लेकिन शरीर के लेवल पे वर्णाश्रम धर्म। इसलिए पृथु महाराज ने हमने शरीर का भी धर्म सिखाया और आत्मा का भी धर्म सिखाया। पृथु महाराज ने बोला शरीर धर्म भी निभाओ, साथ साथ आत्मा का धर्म निभाओ। वेट मत करो कि आत्मा का धर्म मैं बाद में जाके निभाऊंगा, पहले सिर्फ शरीर धर्म। नहीं नहीं, पैरेलली निभाओ। सनत कुमारों ने पृथु महाराज को सेम चीज बोली। नारायण भगवान ने दर्शन दिया पृथु महाराज को, वही बताया वर्णाश्रम धर्म और भक्ति इकट्ठे कट्टे कैसे करनी है। और पृथु महाराज ने सारे समाज को एक ही चीज बोली, आप सिर्फ वर्णाश्रम धर्म निभाओ और साथ साथ कृष्णा को याद करो। तो ये दो चीजें करने से आप क्या करोगे, शरीर का धर्म भी निभाओगे और आत्मा का धर्म भी निभाओगे। तो ये बेटर है ना, दोनों हाथों से काम करना सही है। आपको जन्म मिलता है तो कभी मम्मा ये नहीं बोलेगी कि सिर्फ राइट हैंड से ही काम करो, लेफ्ट हैंड बांध के रखो। नहीं, कोई ये नहीं बोलेगा तुम लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड से ही काम करो, राइट हैंड बांध के रखो। आप दोनों हाथ इकट्ठे चला सकते हो। फिर आप चलना सीखते हो तो दोनों पाव से चलना सीखते हो, एक ही पाव पे लंगड़ी मारते मारते नहीं सीखते। तो जरूरी नहीं है कि शरीर धर्म जो शरीर धर्म में निभाना है, आत्मा धर्म को बुढ़ापे के लिए रख देना है, या फिर आत्मा धर्म तो आत्मा धर्म ही निभाना है और शरीर धर्म को छोड़ देना है, माता पिता को छोड़ देना है, पत्नी को छोड़ देना है, बच्चों को जब मर्जी आए छोड़ दो, डिवोर्स ले लो, माता पिता को जब चाहे ओल्ड एज होम में फेंक दो। ये सारे शरीर धर्म नहीं छोड़ सकते, आपको दोनों कट्टे कट्टे लेके चलना है। दोनों कट्टे कट्टे लेके चलोगे तभी कृष्णा प्रसन्न होंगे। तो ये क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, बॉडीली प्लेन पे जो वर्णाश्रम धर्म है वो मैन का स्टेपिंग स्टोन है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। तब जाके आध्यात्मिकता के लिए आपके अंदर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी आ जाएगी। अगर आपने कर्तव्य ही अच्छे से नहीं निभाएंगे तो धर्म निभाने की अकल भी नहीं आएगी। कर्तव्य जो अच्छे से नहीं निभाता वो धर्म के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करे ना तो भी वो फेक लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है लेकिन दिल ये उसके कर्म बड़े खोटे हैं, बड़े छोटे हैं। तो आपको सबसे पहले तो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए, आध्यात्मिकता की मैच्योरिटी आने के लिए आपको अपने कर्तव्य अच्छे से निभाने पड़ेंगे। जो कर्तव्य है वो करना पड़ेगा। बचपन में पढ़ाई करनी है, बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करना है, अगर है ब्रह्मचारी आश्रम का वो काम तो करो वही काम, और कुछ करने की जरूरत क्या है। फिर गृहस्थ आश्रम में आपका जो धर्म है वो निभाओ। ये करते करते ही आपकी आध्यात्मिकता की मैच्योरिटी बढ़ जाती है, आप ज्यादा मैच्योर हो जाते हो भक्ति करने के लिए। लेकिन कर्तव्य छोड़कर जो भक्ति करता है उसके भक्ति में भी मैच्योरिटी नहीं आती। शरीर धर्म तो छोड़ ही दो, लेकिन उसकी भक्ति भी मैच्योर नहीं हो पाती, सिर्फ फेक होती है वो भक्ति। सो ह्यूमन सिविलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम स्टेज ऑफ वर्णाश्रम धर्म और स्पेसिफिक ड्यूटीज इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक मोड्स ऑफ नेचर बाय बॉडी ऑर्डर। हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मनुष्य योनि है, इसमें जब आता है तो मनुष्य योनि वर्णाश्रम धर्म से ही शुरू होती है और एंड का होती है आत्मा के धर्म पर। प्राणी की योनि होती है, वो प्राणी की योनि वर्णाश्रम धर्म तक पहुंचती ही नहीं है। प्राणी की योनि कैट्स एंड डॉग्स की योनि जो होती है उसमें वो वर्णाश्रम धर्म तक पहुंचते ही नहीं है। लेकिन मनुष्य योनि इसलिए बहुत हाई स्टैंडर्ड हाई क्लास योनि मानी गई है क्योंकि शुरू ही वर्णाश्रम धर्म से होती है। जन्म होती ही आप ब्रह्मचारी आश्रम में गिरे होते हो। एक बिल्ली का बच्चा ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रहता, कुत्ते का बच्चा भी ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रहता, हाथी का बच्चा भी ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रहता। उनके लिए कौन सा वानप्रस्थ, संन्यास या गृहस्थ आश्रम, कुछ नहीं होता। जन्म से लेके मरने तक वो एक ही काम करते हैं, खाना ढूंढना, पानी ढूंढना, खाना और पीना हो जाए तो सोना कहाँ है वो ढूंढना, फिर अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखना और दुश्मन से कैसे बचाना, इतना ही आता है उनको, और कुछ नहीं आता। तो वो जन्म से लेके उनके एक ही धर्म होता है, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, परिवार का रक्षण करना, खाना पीना सोना, परिवार का रक्षण करना, ये चार ही चीजें होती है। मनुष्य योनि जन्मते ही उनका शुरुआत ही स्वधर्म से होती है।
वर्णाश्रम धर्म से, इसलिए मनुष्य योनि को सबसे टॉप क्लास योनि मानी गई है, हायर क्लास। अब इसमें आपको किसी को अगर कभी लगा कि हाय मेरा शरीर क्षुद्र फैमिली में क्यों है, मेरा शरीर क्षत्रिय फैमिली में क्यों है, मुझे तो नहीं चाहिए था, मुझे तो ब्राह्मण फैमिली में चाहिए था। किसी ब्राह्मण फैमिली को लगा काश में वैश्य फैमिली में होता, बहुत पैसा होता। ऐसा अगर कभी ऐसा लगा कि काश में रिच फैमिली में होता, काश में थोड़ा सा मीडियम क्लास फैमिली में होता, काश में ब्यूटीफुल फैमिली में होता, ऐसे जब भी फैमिली रिलेटेड कंप्लेन आएगी ना माइंड में आपको, तो इतना ही याद रखना कि मैं टॉप क्लास योनि में हूं। अब आज भी 84 लाख योनियों में सबसे फर्स्ट रैंकर योनि जो है वो मुझे मिली है, तो मैं डेफिनेटली टॉपर हूँ, सारे योनियों में ही मैं टॉपर हूँ। अब इस योनि में टॉपर होकर मैंने क्या करना है, फर्स्ट रैंक तो मेरा आ चुका है सारे योनियों में, अब मेरा फर्स्ट रैंक आ गया है, अब ये फर्स्ट रैंक मेंटेन करके इससे भी ऊपर कैसे जाना है इसके बारे में सोचो। कंप्लेन करने में टाइम वेस्ट मत करो कि काश में ऐसी फैमिली मिलती, काश में जो वैसी फैमिली मिलती, गांव की मिलती, शहर की मिलती, माउंटेन की मिलती, बीच की मिलती, सिटी में क्यों मिली या फिर सिटी में मिलती। कुछ भी कंप्लेन आ जाए ना अपनी किस फैमिली में जन्म हुआ है, कर्ण की तरह अगर मन में कंप्लेन आई तो इतना थैंक यू बोलना कृष्णा को कि कृष्णा थैंक यू मुझे टॉप क्लास योनि में डालने के लिए। अब मैं अपना आत्मा का धर्म भी निभाऊंगा और शरीर का धर्म भी निभाऊंगा। कृष्णा को कल जाके सुबह सुबह प्रॉमिस करना, कृष्णा को बोलना कृष्णा आई हैव डिसाइडेड कि मैं वर्णाश्रम धर्म बहुत अच्छे से निभाऊंगा और मैं आत्मा का धर्म भी, जो आपका दास बनना है, मैं टॉप क्लास दास बन के दिखाऊंगा आपका। आप मुझे जो भी सेवा दोगे मैं कभी मना नहीं करूंगा उसके लिए। साथ साथ वर्णाश्रम धर्म में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं कभी अपने धर्म से भागूंगा नहीं। ऐसे करके कृष्णा को प्रॉमिस करना कल सुबह जाकर, जैसे ही दंडवत करोगे। भगवत गीता इस श्लोक से अगर आपको कुछ वापस लेके जाना है, ये लेके जाना कि शरीर धर्म और आत्मा का धर्म कट्टे कट्टे फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। शरीर धर्म अनअवॉइडेबल है, शरीर के जो धर्म होते हैं वो फॉलो करने ही पड़ते हैं, उसमें आपको ऑप्शन नहीं है यस और नो, इट इज ओनली यस और यस, यस और यस, दो ही ऑप्शन है और आपको यस ही बोलना पड़ता है, आप नो बोल नहीं सकते। नो बोलने के बाद कर्ण जैसी हालत बन जाती है, ना इधर का ना उधर का, बीच का ही बन जाता है इंसान। सो डिस्चार्जिंग वंस स्पेसिफिक ड्यूटी इन एनी फील्ड ऑफ एक्शन with high orders of higher authority serves to elevate to higher status of life। तो आप जो धर्म निभा रहे हो वो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस के अंडर धर्म निभाओगे। तो जो भी धर्म निभाते हो जीवन में, वो अगर गुरु के इंस्ट्रक्शंस के अंडर निभाओ तो उसमें आपको हायर स्टेटस ऑफ लाइफ मिलता है। मतलब आपकी लाइफ का जो जीने का तरीका है वो थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड हो जाता है एज कंपेयर टू लो स्टैंडर्ड लाइफ। लो स्टैंडर्ड लाइफ क्या होती है, एनिमल की तरह जीना। हाई स्टैंडर्ड लाइफ क्या होती है, मनुष्य योनि मिली है तो मनुष्यों की तरह ही जीना, वर्णाश्रम धर्म निभाना और साथ साथ फिर आत्मा का धर्म भी निभाना। ठीक है, समझ आई बात। आज हम यहीं पे भगवद गीता क्लास खत्म करते हैं। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय, जय श्री कृष्ण बलराम की जय, जय वृंदावन धाम की जय, जय छोटे छोटे भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा संकीर्तन माता की की जय। जय। हरे कृष्णा माता जी, गुड हरे नाइट। कृष्णा, गुड नाइट। हरे कृष्ण।